Hey kids, very good morning to all. Welcome to Shivaji Group of Institution, Liz Bhatia Preschool online classes. Kids, today's date is 20th August 2020 and day is Thursday. Hey kids, welcome to your class. As you all know that we start our class with English recitation. So kids, today we will recite an English rhyme, Teddy Bear. So kids, let's start. Stand up in your place wherever you are and put your hand on your waist. Let's start, kids. Teddy bear. Kids, repeat after me. Teddy bear. Turn around. Teddy bear. Turn around. Teddy bear. Touch the ground. Teddy bear. Touch the ground. Teddy bear, polish your shoes. Teddy bear, polish your shoes. Teddy bear, go to school. Teddy bear, go to school. Kids, repeat one more time. Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, polish your shoes. Teddy bear, go to school. Kids, I hope you have enjoyed this rhyme and learned it well. Thank you. Hey kids, let's start our English oral class. Today we will learn phonetic A to J. A to J. Let's start, kids. Mr. A says apple means Mr. A कैसा साउंड करते हैं ए. Mr. A says apple. Repeat after me, kids. Mr. A says apple. Mr. B says ball. Mr. B says ball. Mr. A says apple. Mr. B says ball. Mr. C says cap. Mr. C says cap. Mr. A says apple. Mr. B says ball. Mr. C says cap. Now Mr. D says dog. Mr. D says dog. Mr. E says egg. Mr. E says egg. Let's revise, kids. Mr. A says apple. Mr. B says ball. Mr. C says cap. Mr. D says dog. Mr. E says egg. Now Mr. F says fish. Mr. F says fish. Mr. G says grapes. Mr. G says grapes. Mr. H says hat. Mr. H says hat. Mr. I says ink pot. Mr. I says ink pot. And Mr. J says joker. Mr. J says joker. Let's revise, kids. Mr. F says fish. Mr. G says grapes. Mr. H says hat. Mr. I says ink pot. Mr. J says jug. Kids, this is your homework. You have to learn it well. Thank you. Hey kids, welcome to the next class and that is English written. Kids, take out your English notebook and open the page where I have done the setting of 20th August 2020 and day is Thursday. Kids, in our last class we have learned to draw the formation of H. Today we are going to revise this. Kids, as you all know that firstly we have to read this statement carefully. Let's start. One man, two men, hello, make H. One man, two men, hello, make H.
So let's start, kids. Kids, need not to tell you. You know very well that we have to touch the upper and bottom line both carefully. Let's start to draw. It is very easy to draw, kids. One man, two man. Hello, hello. Make H. One man, two man. Hello, hello. Make H. Again, one man, two man. Hello, hello. Make H. 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 Kids, in the next page, you have to color this object and recognize it well. So, recognize and color the given object. What is this, kids? This is hat. H says hat. So, kids, now I have done my work. Now it's your turn. Practice it well. Thank you. Hey kids, now this is the time for Hindi recitation. So let's start one Hindi rhyme. Kids, open your rhyme book. Page number 30. इत्तवार. आज हम कौन सी पोएम पढ़ेंगे kids? आज हम पढ़ेंगे इत्तवार वाली पोएम. So kids, stand up in your place wherever you are, and I'm going to recite this poem, and you have to repeat after me with actions. So start, kids. आज इत्तवार है. Kids, repeat after me. आज इत्तवार है, चूहे की बारात है. Repeat after me. आज इत्तवार है, चूहे की बारात है. शादी में जाएंगे, लड्डू पेड़े खाएंगे. शादी में जाएंगे, लड्डू पेड़े खाएंगे, खूब मजे उड़ाएंगे. Kids, repeat one more time. आज इत्तवार है, चूहे की बारात है. शादी में जाएंगे, लड्डू पेड़े खाएंगे, खूब मजे उड़ाएंगे. Kids, I hope you have enjoyed this rhyme. Practice it well and learn it one more time. Thank you. Hey kids, let's start our Hindi oral class. Kids, today we will learn हिंदी स्वर आ से आहा. आज हम क्या पढ़ेंगे? आ से लेकर आहा तक स्वर पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. What is this, kids? ये क्या लिखा है? छोटा अ. छोटे अ से अनार. छोटे अ से अनार. बड़े अ से आम. बड़े अ से आम. किड्स, बच्चों, आपको अक्षर को अच्छे से पहचानना होगा. हम आपको नेक्स्ट टाइम चित्र बनाकर यहाँ पर बताएंगे और आपको उस चित्र को देखकर इसका पहला अक्षर बताना होगा कि ये कौन सा चित्र बना हुआ है और ये किस अक्षर से रिलेटेड है. लेट्स स्टार्ट किड्स. छोटा अ. छोटे अ से अनार. बड़े अ से आम. छोटी ई. छोटी ई से इमली. छोटी ई से इमली. बड़ी ई. बड़ी ई से ईख. बड़ी ई से ईख. छोटा उ. छोटे उ से उल्लू. लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम किड्स. छोटा अ. छोटे अ से अनार. बड़े अ से आम. छोटी ई. छोटी ई से इमली. बड़ी ई. बड़ी ई से ईख. छोटा उ. छोटे उ से उल्लू. अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में. बड़ा ऊ. बड़े ऊ से ऊन. बड़े ऊ से ऊन. री से ऋषि बाबा. री से ऋषि बाबा. ए से एड़ी.
ये क्या है बच्चों? ए से एड़ी, ए से ऐनक, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक। अब ओ, ये क्या लिखा है बच्चों? ओ से ओखली, ओ से ओखली, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली। नेक्स्ट पेज, अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं। औ से औरत। इसमें देखिए बच्चों, एक ही मात्रा लगी है, इसमें कितनी मात्रा है? 2। तो ये क्या है? बड़ा औ, बड़े औ से औरत। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, और आह अक्षर खाली, आह अक्षर खाली। लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम किड्स। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि बाबा, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आह अक्षर खाली। किड्स, लर्न इट मेनी टाइम्स। थैंक यू। Hey kids, welcome to next class, and that is Hindi written. Kids, check out your Hindi notebook and open the page where I have done the setting of 20th August 2020 and day is Thursday. Kids, in our last class we have done some exercises. मतलब कि हमने लास्ट टाइम में भी कुछ हमने एक्सरसाइजेस करी थी। आज हम थोड़ी एक्सरसाइज लेकर चलेंगे, ठीक है बच्चों। अभी तक हमने बड़े ऊ तक कर लिया है, अब हम बड़े ऊ के बाद अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही वर्क था। बच्चों आज हम 2 एक्सरसाइज करेंगे। वी हैव 2 एक्सरसाइज, तो आज हमें 2 एक्सरसाइज करनी है। एक एक्सरसाइज ये है बच्चों, नेक्स्ट पेज में आपकी ये एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज मीन्स आपको ये करना है खुद से। छोटे ऐसे अनार से लेके बड़े ऊ तक हमने आपको पूरा फॉर्मेशन करा दिया है। आपको पता है आपको कैसे करना है, ब्लॉक्स में करना है, टच करना है, कहाँ पे टच करा के नहीं करना है, आपको फॉर्मेशन कहाँ से लाइन से बाहर नहीं निकालना है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता है। तो चलिए बच्चों पहले एक्सरसाइज करते हैं हम। इसके बाद आज हमें क्या करना है, अक्षर आप पहले भी कर चुके हैं कि एक अक्षर के बाद दूसरा अक्षर कौन सा आता है, ये सब आपको अच्छे से पता है, जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं। तो चलिए पहले हम यही एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे हमें यहाँ पे हेल्प मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए पहले नेक्स्ट पेज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है बच्चों? अ से लेके हमें बड़े ऊ तक लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटे अ से अनार, कर्ली वर्ली ट्री एंड अप, वन मैन, हेलो हेलो, मेक अ हैट। जैसा कि हमने आपको बताया था बच्चों कि हम जो हैट बनाते हैं वो सिर्फ वन मैन पर ही रहेगी, कर्ली वर्ली ट्री पर हम हैट नहीं ड्रॉ करेंगे। ओके, ये क्या बन गया बच्चों? छोटे आ से अनार। अब इसके बाद क्या आता है बच्चों? बड़े आ से आम, कर्ली वर्ली ट्री एंड अप, वन मैन, टू मैन, हेलो हेलो एंड मेक अ हैट। अब बच्चों आपको ये अच्छे से पता है कि बड़े आ में हमने क्या बताया था आपको कि 2 मैन से हम ये हेलो हेलो नहीं कराते हैं, हमें सिर्फ 1 मैन से हेलो हेलो कराना है। ओके, और दूसरी बात क्या है बच्चों? छोटे आ से अनार के बाद आपको पता चल गया कि बड़े आ से आम है। कैसे? छोटे आ से अनार के बाद बड़ा आ से आम आता है। मीन्स कि अगर यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि छोटे आ से अनार के बाद क्या आएगा, तो हम क्या बोलेंगे? बड़े आ से आम। तो आप चाहो तो इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो कि छोटे आ से अनार के बाद क्या आएगा बच्चों? बड़े आ से आम। और बड़े आ से आम से पहले क्या आ रहा है? छोटे आ से अनार। नेक्स्ट बच्चों, अब बड़े आ से आम के बाद क्या आएगा? छोटी ई से इमली। कैसे बनाया बच्चों हमने? वन स्मॉल मैन मेक सीड, टर्न ले लिया, फिर टेल अंदर से निकाल दी और एक हेड ड्रॉ कर दी। ये क्या बन गया? छोटी से इमली। और बच्चों बड़ी से ईख में क्या हमने आपको बताया था, याद होगा आपको? बड़ी से ईख कैसे हमने ड्रॉ करी थी? जैसे छोटे आ से अनार बनाया तो बड़े आ से आम में हमने 1 मैन और ड्रॉ कर दिया। अभी छोटी से इमली बनाई तो बड़ी से इमली कैसे पता चलेगा कि है? बड़ी से इमली में हमें उसको क्राउन दे देते हैं, उसे राजा बना देते हैं, ठीक है। बड़ी से ईख, वन स्मॉल मैन मेक सीड, टर्न एंड टेल, और एक हेड बनाकर उसके ऊपर क्राउन बना दिया। ओके, तो क्या बन गया बच्चों? बड़ी से ईख। अब चलिए छोटे ऊ से उल्लू बनाते हैं, क्योंकि बड़ी से ईख के बाद क्या आएगा? छोटे ऊ से उल्लू। और ये तो बहुत ही इजी है, कर्ली वर्ली ट्री एंड अप, और बस एक हैट ड्रॉ कर दी। ये क्या बन गया बच्चों? छोटे ऊ से
उल्लू। अब छोटे उसे उल्लू के बाद बड़े उसे ऊन में भी हमने आपको कुछ बताया था कि छोटे उसे उल्लू बना के उसके पीछे टेल निकाल देते हैं और वो क्या बन जाएगा, बड़े उसे ऊन। तो ये हमने क्या बना दिया बच्चों, कर्ली वर्ली 3 एंड आर्क, 1 टेल एंड 1 हेड, ये बन गया बड़े उसे ऊन। तो बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से ध्यान से पूरा वर्क करना है, क्योंकि आप जैसा ये वर्क लर्न करके करेंगे वर्क, वैसा ही आप एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे। छोटे से नार, बड़े से आम, छोटी सी उंगली, बड़ी से ई, छोटे से उल्लू, बड़े से ऊन। एक के बाद एक कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं आपको वो करना है। अब हम आते हैं बच्चों पहले वाले पेज पर। अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि इसके बाद कौन सा अक्षर आना है, तो चलिए हम करते हैं छोटे उसे उल्लू। आप चाहो तो स्टार्टिंग से पढ़ सकते हो कि छोटे उसे उल्लू के बाद क्या आएगा, नहीं याद आ रहा तो हम कैसे करेंगे, छोटे से नार, बड़े से आम, छोटी सी इमली, बड़ी से ही, छोटे उसे उल्लू। तो अब छोटे उसे उल्लू के बाद क्या आएगा, बड़े उसे ऊन। तो ऐसे में याद आ गया कि क्या आएगा, ये बड़े उसे ऊन। और इसका फॉर्मेशन तो हमने अच्छे से लर्न ही कर लिया है। छोटे उसे उल्लू के बाद बड़े उसे ऊन। अभी नेक्स्ट क्या है, छोटी सी इमली। छोटी सी इमली के बाद क्या आता है बच्चों, छोटे से नार, बड़े से आम, छोटी सी इमली, इसके बाद बड़ी ई से ईख। ये क्या बना दिया हमने, बड़ी से ईख बना दिया। One small man makes seed, turn and tail and 1 crown, 1 head, क्या बन गया, बड़ी से ईख। नेक्स्ट बड़े से आम। बच्चों बड़े से आम के बाद क्या आएगा, छोटे से नार, बड़े से आम, फिर छोटी से इमली। ये हमने बना दी छोटी से इमली। अभी नेक्स्ट बड़ी से ईख। तो इसके बाद क्या आएगा, चलिए फिर से पढ़ते हैं। छोटे से नार, बड़े से आम, छोटी सी इमली, बड़ी से ईख। अब क्या है बच्चों, छोटे उसे उल्लू। मीन्स की बड़ी से ईख के बाद यहाँ क्या आएगा, छोटे उसे उल्लू। कर्ली वर्ली 3 एंड आर्क, 1 हेड, छोटे उसे उल्लू। अभी बच्चों ये तो बहुत ही इजी है। छोटे से नार के बाद क्या आता है, सबको पता है। छोटे से नार के बाद बड़े से आम, तो हमने ये लास्ट में लिख दिया बड़े से आम। तो बच्चों इस तरह से हमने आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आपको इसी तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। पहले आप ये वाला वर्क करिएगा, उसके बाद ये वाला वर्क करिएगा, ताकि आप इसके बाद ये वर्क इजिली कर सकें। थैंक यू। Hey kids, welcome to next class and that is maths written. Kids, take out your maths notebook and open the page where I have done the setting of 20th August 2020 and day is Thursday. Kids, in our last class we have learned to draw the formation of 8. Kids, today we are going to learn the formation of 9. Okay? So as you all know that firstly we have to read this statement carefully. Let's start kids. One man makes C lollipop 9. One man makes C lollipop 9. Kids, look at the board. One man makes C and kids it look like a lollipop. ये कैसा दिख रहा है आपको, लॉलीपॉप जैसा दिख रहा है ना। तो ये हमने क्या बना दिया, लॉलीपॉप बना दी। Make C, one man makes C and make lollipop 9. So kids, let's start. It is very easy to draw. And kids, as you all know that we have to touch the upper and bottom line both carefully. So kids, let's start our work. One man makes C lollipop 9. Again, one man makes C lollipop 9. Again kids, बनाते हैं हम लोग। One man makes C lollipop 9. किड्स, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी लाइन से बाहर कोई भी फॉर्मेशन नहीं जाए। किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का आप जब ड्रॉ कर रहे हैं फॉर्मेशन, तो वो लाइन से ना तो अप साइड जाना चाहिए ना तो नीचे जाना चाहिए। आपको बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेशन करना है। ओके, वन मैन मेक्स C lollipop 9. One man makes 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 C lollipop 9. Again one man makes C and lollipop 9. One man makes C lollipop 9. One man makes C lollipop 9.
Okay, you have to do the same work in the next page. Okay, and let's look at this page. Count these objects. In your notebook, you have to color these objects and count it also. So let's start. How many apples are there? Kids, count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Kids, you don't have to cut this. आपको ये कट नहीं करना है. मैम आपको बता रही है क्योंकि ये काउंट करके बता रही है. आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, सेम वर्क जो आपको ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करके देंगी मैम, आपको सिर्फ उसको काउंट करना है और उसमें कलर करना है. ओके, सो हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर किड्स? देयर आर 9 एप्पल्स. ओके, सो किड्स, now I have done my work. Now it's your turn. Practice it well. Thank you. Hey kids, welcome to your class, and that is GK Oral. Kids, as you all know that GK is an oral subject. So kids, as we have already learned to recognize all these shapes. So today we will revise all these shapes again. Let's start, kids. Which shape is this? What is this, kids? This is triangle. 1, 2, 3. It has 3 arms, so it is triangle. Next, this is oval. Oval, triangle, and then it has 4 arms. 1, 2, 3 and 4. 4 arms, so it is square. And 4 equal arms, so it is square. Now round and round, circle. Round and round, circle. Let's revise one more time. Triangle, square, triangle, square, oval, circle, square, circle, triangle, oval. So kids, recognize it well and learn it well. Thank you.